نیشنلٹی کے اوپر پلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یہاں ملک میں کچھ تباہی آئی, کچھ ہوا, یہ آرام سے جا کے وہاں سے عائشی کریں گے, بڑے بڑے پیسے رہ کے محلوں میں رہیں گے. یہاں ملک کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, یہ میرے کپتان کی باتیں ہیں, یہ ان کے خیالات ہیں, یہ ان کا دوہری شہریت پر موقف ہے. لیکن یہ باتیں, یہ خیالات اور یہ موقف اس وقت کا ہے جب وہ حکومت میں نہیں تھے, جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, وہ اپوزیشن میں تھے. جب میرے کپتان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس اصولی موقف سے یو ٹرن لیا. انہوں نے اپنی کابینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جگہ دی جن کی وفاداریاں تقسیم تھیں, جو پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے بھی شہری تھے. اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں نے اپنے اثاثے اور شہریت ظاہر کی. جمع کرائے گئے اثاثوں کے مطابق 15 میں سے 7 معاونین خصوصی ایسے ہیں جن کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت یا مستقل رہائشی کارڈ ہے. ان میں سے زلفی بخاری برطانوی, شہزاد قاسم اور ندیم بابر امریکی, جبکہ تانیہ ادریس کینیڈا اور سنگاپور کی شہری ہیں. شہباز گل اور معید یوسف امریکی گرین کارڈ ہولڈر اور ندیم افضل چند کی کینیڈا کی مستقل رہائش سامنے آئی. یہ خبر سامنے آنے کے بعد دوہری شہریت کے معاملے پر تبصرے ہوئے, تجزیے کیے گئے. کپتان کو ان کی پرانی باتیں یاد دلائی گئیں. یہ خبریں, یہ تبصرے اور تجزیے 3 دن تک میڈیا کی زینت بنے اور پھر میڈیا کی حد تک بات ختم ہو گئی. لیکن آج ایک بار پھر اس وقت معاملہ دوبارہ زیر بحث آ گیا جب سنگاپور سے گوگل کی نوکری چھوڑ کر آنے والی وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کی معاون خصوصی تانیہ ادریس نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ ان کی دوہری شہریت پر ہونے والی تنقید کے باعث وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہی ہیں. اس کے کچھ ہی دیر بعد میرے کپتان کے ایک اور معاون خصوصی ظفر مرزا نے بھی استعفیٰ دے دیا. گو کہ ظفر مرزا کی دوہری شہریت نہیں, لیکن وہ بھی معاون خصوصی بننے سے پہلے پاکستان سے باہر WHO کے ملازم تھے. تانیہ ادریس نے اگر واقعی اخلاقی معیار کو بنیاد بناتے ہوئے عہدہ چھوڑا ہے تو یہ قابل تعریف بات ہے. لیکن کیا پھر اسی معیار پر میرے کپتان کی کابینہ میں موجود باقی 6 معاونین خصوصی کو ان کی تقلید کرتے ہوئے عہدوں سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے تاکہ کپتان اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے بچ جائیں؟ دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ تانیہ ادریس اور ظفر مرزا نے استعفے دیے نہیں بلکہ ان دونوں کے خلاف جاری مبینہ بے قاعدگی اور کرپشن جیسے الزامات کی تحقیقات کی وجہ سے ان سے استعفے لیے گئے ہیں. اگر ان سے ان الزامات کی وجہ سے استعفے لیے گئے ہیں تو پھر صرف استعفوں سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ کرپشن اور سرکاری عہدوں کا ناجائز استعمال سنگین جرائم کی فہرست میں آتا ہے. میں یہ بات آخر کیوں کہہ رہا ہوں کہ صرف استعفوں سے کام نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ الزامات پر واہ واہ کرنے والوں کے لیے استعفیٰ لینا معاملے کو دبانے اور گندگی کو قالین کے نیچے چھپانے کے مترادف ہے. اور میرے کپتان کے 2 سالہ دور میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثال نمبر 1, عامر محمود کیانی میرے کپتان کے پہلے وزیر صحت تھے. ان کی وزارت میں ادویات کا سکینڈل آیا, کرپشن کا الزام لگا تو میرے کپتان نے ان سے جھٹ استعفیٰ لے لیا. وہ مستعفی ہو گئے, لیکن نہ کوئی انکوائری, نہ کوئی تفتیش اور نہ ہی سزا. کچھ دیر آرام کے بعد کپتان نے عامر محمود کیانی کو تحریک انصاف کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا. تو جناب, اس لیے میں کہتا ہوں صرف استعفوں سے کام نہیں چلے گا. مثال نمبر 2, جہانگیر ترین کو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت سے نااہل ہونے کے باوجود کپتان نے اپنے ساتھ رکھا. حکومت بنانے میں مبینہ طور پر ان کے جہاز کا خوب چرچا رہا. کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل ہونے کے باوجود انہیں زراعت کی ٹاسک فورس کی سربراہی دی گئی. جب چینی اسکینڈل میں ان کا نام آیا تو ان سے بھی استعفیٰ لینے کا اعلان کر دیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ نہ انہیں گرفتار کیا گیا, نہ ان کا نام ECL میں ڈالا گیا. وہ میرے کپتان کی حکومت میں بڑے آرام سے ملک سے باہر چلے گئے. تو حضور, اسی لیے میں کہتا ہوں صرف استعفوں سے کام نہیں چلے گا. مثال نمبر 3, فردوس عاشق عوان سے کون واقف نہیں؟ وہ بھی میرے کپتان کی معاون خصوصی تھی. ان کے پاس اطلاعات کی وزارت تھی. کچھ ماہ پہلے ان سے استعفیٰ لیا گیا. خبریں پھر یہی سامنے لائی گئیں کہ ان پر مبینہ کرپشن کے الزامات میں اس لیے کپتان نے عہدہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اس کیس میں بھی نہ کوئی انکوائری, نہ تفتیش, نہ ہی نیب اور نہ ہی FIA. استعفیٰ لیا اور کھیل ختم.
तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ इस्तीफों से काम नहीं चलेगा? मिसाल नंबर 4, आजम सवाती मेरे कप्तान के वजीर हैं। उनके फार्म हाउस में गरीब की गाय घुसने का वाकया किसे याद नहीं? गरीब खानदान पर तशद्दुद करने का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो मेरे कप्तान ने आजम सवाती से इस्तीफा ले लिया। हर तरफ वाह वाह हुई, तारीफों के पुल बंधे। लेकिन फिर क्या हुआ? यूं ही इस वाकये की गर्द बैठी, आजम सवाती को दोबारा काबीना में शामिल कर लिया गया। वो आज भी वजीर हैं। तो फिर आप ही बताएं, क्या यह कहना गलत है कि सिर्फ इस्तीफों से काम नहीं चलेगा? मिसाल नंबर 5, पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान हो या वजीर जंगलात सप्तैन खान हो, उनसे भी नैब मुकदमात की वजह से फौरी इस्तीफे लिए गए। उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, मुकदमात बाकी हैं, मामलात अदालत में हैं, फैसले अभी आने हैं, लेकिन कप्तान ने उनको दोबारा वजीर बना दिया। बल्कि अलीम खान का नाम तो वजारत आला की दौड़ में भी पुकारा जाता है। तो फिर है मेरे कप्तान, अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इंसाफ करना है तो फिर पूरा करें, ताकि आने वाले वक्त में लोग आपकी उसूली सियासत और इंसाफ की मिसालें दें, ना कि यह कहें कि सिर्फ मीडिया और अपने नाकदीन का मुंह बंद करने के लिए गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी गई। नाज़रीन, इसी के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार खान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास जाएंगे। मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जनाब हमने असूल के ऊपर ये काम किया है और असूलों की पॉलिटिक्स करते हुए ये सब कुछ किया है, और कोई और पार्टी ये करके दिखाए, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करके दिखाए कि जो हम बात कहते हैं उस बात को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। किस तरह देखते हैं आज के इस्तीफों को आप? ये बात सही कह रहे हैं मंसूर अली खान, मगर आपने जो बात की है मशीरों वज़ीरों के हवाले से कि जो उनके करप्शन स्कैंडल सामने आए, मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब कि उन्होंने मशीरों से तो इस्तीफ़े ले लिए बकौल हुकूमत वक्त के जो तर्जमान हैं उनके, तो जो वज़ीरों ने स्कैंडल सामने लाए, जो वज़ीरों ने गुल खिलाए, क्या उनसे भी किसी ने इस्तीफ़े लिए? मैं बहुत से लोगों का नाम ले सकता हूं, मगर मैं सिर्फ खुसरो बख्तियार का नाम लेता हूं। अच्छा। मैं बहुत से नाम ले सकता हूं, मगर जो आपने सवाती साहब का जिक्र किया, आमर क्यानी साहब का जिक्र किया, आप दीगर लोगों का, ये पेट्रोल में, बिजली, गैस में जो स्कैंडल सामने आए 2 सालों में, क्या उनसे इस्तीफे लिए गए? जो कमज़ोर आदमी थे उनसे सिर्फ इस्तीफे लेकर उनको फारिग कर दिया गया। मगर मंसूर अली खान साहब, कभी ये नहीं होता कि पिछली हुकूमतों में इस तरह के स्कैंडल सामने आए हों, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो। आप मुझे ये बताएं, किसी एक वजीर का या मशीर का कोई स्कैंडल सामने आता था तो पूरा मीडिया पड़ जाता था उसे, और हुकूमत वक्त कोई भी होती थी वो दफाई पोजीशन में आती थी और अपने उस वजीर मशीर का दिफा करने की बजाय उसको एहतसाब के सामने खड़ा कर देती थी। आज इन्होंने फ़र्क क्या आया इनका और हमारा, कि 2 सालों में एहतसाब के अदारों को हम तो भुगत रहे हैं, और जब ये नैब के कवानीन में तरमीम लाकर बात करना चाहते हैं अपोजिशन से, तो अपोजिशन के लोग, मंसूर अली खान, जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं ये NRO चाहते हैं। आज FATF के हवाले से जो बिल लाना चाह रहे थे, जो कल वज़ीर ख़ारजा ने जो गुफ्तगू फरमाई, मुझे शर्म आई कि एक अच्छे ख़ानदान से एक सीजन पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो किसी तौर पर भी उनकी शख्सियत के शान निशान नहीं थी, मगर उन्होंने कर दी। और इल्ज़ाम क्या लगाया कि जनाब कौमी मफादात पर ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है और नैब के कवानीन हमें ब्लैकमेल करके तरमीम लाना चाहते हैं। भाई, हम ये कहते हैं कि आज के बाद नैब कवानीन के हवाले से हम हुकूमत वक्त के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई निगोशिएट नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि इससे और सख्त लाना चाहते हो तो और ले आओ, हमने पहले भी भुगता है, अब भी भुगतेंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। जहां तक FATF का जिक्र करते हैं बिल का, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में ले आए पाकिस्तान को, इसका क्रेडिट हुकूमत वक्त ले ले या कोई और ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। हमें खुशी है
کہ خدا نے چاہا اور خدا نے کیا کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گئے. مگر جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پابندیاں پاکستان پر لگنے والی ہیں, اگر ہم اپنے گھر کو درست کر لیں گے تو یہ پابندیاں نہیں لگیں گی, اس وقت ہمیں غدار کہا گیا تھا. جس طرح آج کیا جا رہا ہے, آج بھی نیب کی آڑ میں, آج بھی احتساب کی آڑ میں ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے, اور خود جو کرتوت کر رہے ہیں. یہ جو بل ہے ایف اے ٹی ایف کا, منصور علی خان صاحب 6 ماہ سے کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, اس وقت تو ان کو کوئی جلدی نہیں آئی, اور مشیر خزانہ کا یہ انتظار کرتے رہے, وہ بھی قصور کیا اپوزیشن کا تھا, ہم تو یہ چاہتے تھے. اور یہ آج کیوں جلدی میں ہیں, یہ 6 ماہ سے جلدی میں کیوں نہ آئے؟ ان کو علم نہیں تھا کہ گرے لسٹ کا جو ٹائم فریم ان کو دیا گیا ہے وہ ٹائم پورا ہونے والا ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں. میں سر ایف اے ٹی ایف پہ آتا ہوں, سر میں ایف اے ٹی ایف پہ آتا ہوں, ذرا میں اس ٹاپک پہ ذرا پہلے بات کر لوں میں, لیکن آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, اس پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا. شہرا صاحبہ ایک بات, میں ابھی شاندانہ صاحبہ کے پاس تو جاؤں گا ہی, لیکن ایک بات ہے کہ جن مشیروں نے, جن معاونین خصوصیوں نے یہاں پر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے, شہریت پتہ لگی, پاکستان تحریک انصاف چلیں, وہ لوگ کیوں ان سے استعفیٰ لیا گیا یا دیا گیا, میں ابھی اس ڈیبیٹ میں جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ قدم اٹھا سکتی ہے؟ سندھ کی حکومت ہے آپ کے پاس, کیا آپ لوگ اپنی پارٹی کے اندر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کون کون ہے یہاں پہ دورہ شہری؟ آلریڈی سب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنا سب, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف 2 تو نہیں تھے جو دوہری شہریت کے ہیں, باقی بھی ہیں. اور میں یہ بھی سوال کرتی ہوں کہ اتنے کاکے تو نہیں ہے وزیر اعظم کہ انہیں پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی دوہری شہریتیں نہیں ہیں. ایسا تو مسئلہ نہیں ہے, پورا سب چھان بین کے اپنے الیکٹڈ لوگوں کو سائیڈ میں کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں سب دیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے شہریت نہیں چھوڑی, وطن چھوڑ دیا. اب انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھے احساسات رکھتے ہیں, جذبات رکھتے ہیں, خدمت کے جذبے سے معمور ہو کے یہاں آئے. تو خدا کے لیے ان لوگوں کو پہچانے جو اپنے وطن کے ہیں اور اپنے وطن کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ان پہ غداری کے فتوے, ان کے لیے موت کیوں ہے, وہ سیکیورٹی رسک کیوں ہے؟ تو میں ایک تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ صرف 2 ہی نہیں ہیں. اگر آپ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے دور میں کی تھی, حج کرپشن کیس آیا تھا تو ہمارے حامد علی کاظمی صاحب جیل میں رہے تھے, اور پھر ہماری جب حکومت چلی گئی تو اس کے بعد یہی اعظم سواتی جو اس وقت ایک اور پارٹی میں تھے. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو سارے وہ لوگ بہت زور سے بولتے ہیں عمران صاحب کے لیے جو دوسری جگہوں سے گھوم پھر کے آ رہے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں یا کوئی ہوں. آج وہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب پکا راگ گا رہے تھے. بھائی جب وہ پکا راگ گا رہے تھے آپ مختلف پارٹی سے اپنے سر ملا رہے تھے, تو مختلف پارٹیز میں رہ کے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اور بھی لوگ ہیں, اور ظفر مرزا صاحب پہ تو باقاعدہ انڈیا سے بھارت سے جائی گئی خلاف ضابطہ دوائیں ہیں, ان کا کیس ہے, ان کی انکوائری چل رہی ہے. اور تانیہ صاحبہ پر بھی, کیونکہ ان کو گنا جاتا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ, اور ان کو لانے کا سیدھا ان کے سر تھا, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا, پھر کوئی انہوں نے کمپنی بنائی, اس کے بھی مسئلے ہیں. تو یہ انکوائریز بھی ہیں. تو باقی صرف دوہری شہریت معاملہ نہیں ہے, ورنہ بہت سارے ہیں, زلفی بخاری ہیں اور بہت سارے ہیں. سوال لے لیں, ایک سوال آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی حج کرپشن سکینڈل آیا اور ہم نے اپنے وزیر کو وہاں سے ہٹا دیا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر یہ مثال آج کل کیوں نہیں چلتی؟ مراد علی شاہ صاحب بھی نیب کی جو ہے وہ انکوائریز بھگت رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی ہیں, اور بھی آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی لوگ ہیں, ان سے تو کسی سے آپ لوگوں نے استعفیٰ نہیں مانگا ابھی تک. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں نیب کے لیے سپریم کورٹ جو کچھ کہہ چکا ہے کہ یہ تو یک طرفہ معاملہ ہے, کل مجھ پہ کوئی مقدمہ کھول دے میں کیا کر لوں گی, میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو نیب کے لیے تو جو کچھ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اس کے بعد میں تو بھائی بہت ڈرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نیب جس نے یہ کہا تھا کہ 10 منٹ میں یہ گر جائے اگر ان کے وزیروں کے خلاف ہو, تو اس چیئرمین کے خلاف جو ویڈیوز آئیں تو میں بہت ڈرتی ہوں ان باتوں سے. پہلے ہی میرے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اتنے اکاؤنٹ بنا کے میرے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے. کل میں نے کہا بھی ٹھیک.
शाहनाज़ मैंने शहबाज गिल से कहा कि जरा चेक कर लिया करो कब किसके ये ट्वीट जो हैं जो मेरे होते हैं। अच्छा, तो शानदाना साहब, सबसे पहले जाहिर बात है आज 2 इस्तीफे आए हैं। अब नॉर्मली किसी गवर्नमेंट के लिए अगर 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग अगर वो इस्तीफा दे दें तो बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है हुकूमत के लिए। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्या ये इस्तीफे दिए गए हैं या लिए गए हैं? अच्छा शानदाना साहब, आपकी आवाज म्यूट हुई हुई, अगर आप प्लीज उसको अनम्यूट कर दें क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी जी, शुक्रिया मंजूर साहब। जी जी शुक्रिया जी। देखिए तानिया इद्रूस, जिस तरह उनको इन्हीं 2 पार्टीज ने पिछले 2-3 हफ्तों से उनके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों के बारे में एक बात कह सकते, बहुत बातें नहीं कह सकते। अंग्रेजों के बारे में, तानिया इद्रूस की बात नहीं कर रही हूँ, कि उनके मुल्क में मेरिट चलता है, सच चलता है। और तानिया बीबी की पैदाइश भी कनाडा की है, तो वो है एट हार्ट पाकिस्तानी। और उनके आज जो स्टेटमेंट थी, उनका खत देख लीजिए, वो कह रही है कि आई चूज टू रिजाइन बट आई एम नॉट लीविंग पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की खिदमत करती रहूंगी। सो दैट इज वेरी क्लियर कि वो कहीं जा नहीं रही है, वो मुल्क नहीं छोड़ के जा रही है। उनकी पूरी फैमिली यहाँ मूव कर गई है, पासपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान आगे खिदमत दे रहे हैं और वो किसी और कैपेसिटी में कर लेंगी। उनको कोई काम करने से नहीं रोक सकता पाकिस्तान के लिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वाहिद हुकूमत है जो जनरल याहिया के बाद ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हुआ था इस मुल्क में, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। मैं भी वापस आई हूँ, मेरी तरह 100 के 100 लोग वापस आए हैं और इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर कोई अपने मुल्क की खिदमत करे। ठीक है, वो SAPM नहीं रहना चाहती, उनके लिए ज्यादा आसान हो सकता है, शायद उनकी फैमिली के लिए बेहतर हो। लेकिन अगर मैं आपको दोबारा कहती हूँ, अगर वो कह रही है शी इज रिजाइंड, देन शी हैज रिजाइंड। इसमें 2 बातें, अंदर की बातें, 3 बातें ढूंढने की कोई बात नहीं हो। जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में बोला कि जी अगर करप्शन के चार्जेस इसलिए इनसे रेजिग्नेशन मांगा गया है, वो सामने आ जाएगा। और ये प्लीज शुरू से ही तमहीद जरा बांधू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कॉलीग्स, हमारी वाहिद पार्टी है कि अपने लोगों को करप्शन कर पे या मुल्क से निकालती है, या पार्टी से निकालती है, या ओहदे से निकालती है। उनको हम एम्बेसडर्स नहीं बनाते बाहर ममालिक के, उनको हम दूसरी मिनिस्ट्री नहीं दे देते। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ सबसे जो, और मैं भी जरा पार्टी वाइज बात कर रही हूँ क्योंकि इतनी सारी बातें हुई हैं, सो आई लाइक टू रिस्पॉन्ड। एड्स होती है सिंध में, रेबीज होती है, डॉक्टर अजरा पेचुओ ना अपोलोजाइज करती है, ना रेजिग्नेशन देती हैं। पैंडेमिक आती है, हम पे 1000 चीजें कोरोना पे छोड़ी जाती हैं, लेकिन ये लोग उसको इससे भी पीछे नहीं हटते। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज की कोरोना रिवर्स हो रहा है। ये तभी माफी नहीं मांगेगी कि जी ये लोग गलत बातें कह रहे थे, बट चलो डजंट मैटर। PTI ने अपने 25 सिटिंग MPs पार्टी से निकाले क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी से पैसा लिया 4-6 करोड़, फिर वीडियोस भी हमें भेजी, वो वीडियोस हमने पब्लिक की। हमने 25 सिटिंग MPs को निकाला क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपनी सेनेटर लेके आनी थी KP से और पैसे देके। तो इनकी जो माशाल्लाह करतूतें हैं वो तो सारी दुनिया को पता है। अब ये साफ शफाफ बनने की कोशिश करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वीडियोस अभी भी मेरे पास पड़ी, मैं आपको भेज दूं कि किस MPA को, किस पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने, किस MPA ने, किस MNA ने कितने पैसे डिलीवर किए। उनकी तस्वीरें हैं, नाम है, वीडियोस हैं, सारी हिस्ट्री है। तो हम पे कीचड़ उछालने से इनका पास तो माजी तो नहीं साफ हो सकता। बट चले, मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी वापस आ रहे इस मुल्क पे काम करने के लिए, इनको उस पर ऑब्जेक्शन है, बट चले इनकी अपनी सोच। और मैं आपको अश्योर करती हूँ, आपकी जितनी पीपल्स पार्टी और नून लीग के, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल है, इन सब के बच्चों के फॉरेन पासपोर्ट से किसी का पाकिस्तान प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें और आप फिर मुझसे दूसरा तीसरा पूछ लें। IP अच्छा, एक और बात, रिश्तेदारी की बात करती हूँ। इनको तो जमहूरियत का गम है कि जी यहाँ पे एडवाइजर्स बिठा देते हैं कैबिनेट में। आपने तो अपने समधी बिठाए होते, बहन भाई बिठाए होते, वो कौन सी जमहूरियत है? मुझे वो भी समझा दी। वो तो बादशाहत है कि जी 36 बंदे मेरे खानदान के हुकूमत वक्त में लगेंगे, MPA पे भी, MNA पे भी, हर जगह पे। तो मुझे समझा दी किस जमहूरियत में होता है, मैं मान जाऊंगी इनकी जमहूरियत। आप देख ले कि जब IPPs का हमने बेड़ा गर्क हो रहा था पाकिस्तान का, और जो हमारे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, वो किसने किए? आबिद शेर अली साहब वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। वो कौन है मियां साहब? के आपको पता है, मुझे पता है। तो देखिए, बातें करने को तो इतनी बातें आप सोच नहीं सकते, लेकिन जो बंदा वाकई जमहूरियत चाहता है, जो बंदा वाकई मुल्क की बेहतरी चाहता है, वो ये काम नहीं करते जो ये हो रहे हैं। बाकी मैं आपको छोड़ती हूँ। अच्छा, मैं आपके पॉइंट्स वैलिड है और मैं चाहूंगा कि मियां जावेद लतीफ साहब और शैला रजा साहब इसके बिल्कुल उस पर जवाब दें। मेरा दोबारा एक सवाल ये है, चलें आपने तानिया साहिबा की तो बात की कि वो सर्व करती रहेंगी और उनकी फैमिली भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर हम लोग उनसे कोई फायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान क्यों ना फायदा उठाए। लेकिन डॉक्टर जफर मिर्जा ने उसको विड्रॉ कर दे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्यों रिजाइन किया? ऐसी क्या बात हुई? आखिर कोई वजह तो होगी, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद फरमाया कि कोरोना की केसेस की तादाद भी कम हो रही है, और जाहिर बात है ऐसी सूरत हाल में जब इस वक्त एक पेंडेमिक चल रहा है मुल्क के अंदर, ऐसी सूरत में जो सबसे आगे लीडिंग फिगर है वो रिजाइन कर दे,
तो क्वेश्चन मार्क्स तो उठते हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन, पीएम हाउस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, दो बातें, एक तो मैं कैबिनेट में हूं नहीं, ना मैं पीएम हाउस में, मैं तो सिटिंग एमएनए हूं, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है मिलती है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की जो अहलिया है वो मेरी दोस्त हैं जिनीवा में, वो भी वहाँ काम करते थे, मैं भी काम करती थी, मैं WTO में थी, वो WHO में थे। तो अगर उनको लगता है कि उनके पाकिस्तान में टाइम इट्स ओवर, शायद कल को मुझे भी लगे मैं भी चली जाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें ग्रीनर पास्चर्स से रोक सकते हैं। अगर मैं वापस जाना चाहूँ WTO, वहाँ की तनख्वाह यहाँ की तनख्वाह में थोड़ा सा फर्क है, हम सब टेक्नोक्रेट्स हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम पढ़ लिख के आए हैं यहाँ पे, तो शायद हम एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, शायद हमें लगे कि सियासत में फ्यूचर हमें नहीं मिल सकता। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं बार बार आप मंसूर साहब कि इसमें कंस्पिरेसी ढूंढी जाए, मैं उनसे बात करूंगी जफर साहब से, लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही थी जो फेस वैल्यू पे होता है अगर उसको डिस्प्रूव नहीं होता, या वो कहते हैं where there's smoke there's a fire, यहाँ कोई ना फायर है ना स्मोक है, क्लियर कट रेजिग्नेशन है कि जी नहीं करना काम। लेकिन सेक्रेटरी कॉमर्स एक दिन में जब 2 इस्तीफे आते हैं तो जाहिर बात है कोई ना कोई स्मोक होती है, वरना एक दिन में इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस 2 इस्तीफे एक ही दिन में आ जाए। मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स रिजाइन किया मई 2019 में, मेरी रेजिग्नेशन नवंबर में एक्सेप्ट हुई, वो सिर्फ इसलिए कि मैं इंटरनेशनल चेयरपर्सन बन गई थी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस की, और वो काम पाकिस्तान के लिए बेहतर था। बीइंग पार्लियामानी सेक्रेटरी कॉमर्स वाज नॉट चैलेंजिंग इनफ, तो मैंने रिजाइन किया, मुझसे भी पीएम नाराज थे, मेरी 5 महीने रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की गई क्योंकि मैं पिछले 18 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री में लीगल एडवाइजर थी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस पे कबल अज वक्त आप बेशक बहस कर सकते हैं, आई डोंट स्टॉप कि आपका फुल हक है, लेकिन इससे कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जारी बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी सवाल करते हैं कि जनाब आप लोगों ने भी तो अपने खानदान के मुख्तलिफ अफराद को जो है वो वजारतें भी दी, उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी बिठाया, लेकिन किसी में भी आज तक इतनी मॉरल करेज नहीं हुई कि उन लोगों से किसी किस्म के इस्तीफे मांगे जाएं या परफॉर्मेंस के ऊपर ये कहा जाए कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तीफों के ऊपर बात हो रही थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 बड़े इस्तीफे आए और कोई छोटे इस्तीफे नहीं थे, ऐसे इस्तीफे थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो फ्रंट लीडर्स हैं। अगर एक आईटी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दूसरे सेहत के शोबे को लीड कर रहे थे। उसके बाद अब से कुछ देर पहले शानदाना साहिबा ने कहा कि हम लोगों ने चले किसी भी वजह से इस्तीफे दिए हों, लेकिन जो 2 पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने तो वजारतों की बंदरबांट अपने खानदान में की और उसके बाद किसी से कोई सवाल तक नहीं किया गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? यार मंसूर अली खान, मैंने इस पे क्या कहना है, मगर हकायक तो पूरी कौम के सामने। अभी मेरी बहन ने PTI की जो हैं, इन्होंने जिक्र किया था कि हमने वो याह्या खान के बाद जो तर्ज हुकूमत अपनाया, अगर ये जनरल याह्या का जिक्र करते हैं तो मैं इनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ये इन्होंने तशबीह उस हुकूमत के हवाले से दुरुस्त दी है। वो इसलिए कि जनरल याह्या भी अपनी मुखालफिन के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात बना के उनको गिरफ़्तार करते थे, कमज़ोर करके अपनी हुकूमत को दुआम बख्शते थे। वही तर्ज़ अमल जो है आज के बग़ैर वर्दी इमरान खान साहब का है। दूसरा, मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, आपने एक परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया था, आपके सवाल से पहले मैं ये जिक्र कर लूँ भाई, जब हम मंसूर अली खान साहब आए थे तो उस वक्त हमें बड़े चैलेंजेस का सामना था। लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी। हमने इन चीज़ों को ड्रेस किया, कर्जे लेकर इन पर खर्च किए, कारखाने लगाए, और उसके बाद आप जो जिक्र करते हैं कि हमने अपने लोगों को नवाजा, तो भाई आप मुझे ये बताएं कि उनमें से कोई एक भी ऐसा बंदा बता दें जो दोहरी शरीयत का था, जिसने इस तरह अरबों खरबों रुपए के डाके डाले हों और उसको हमने नोटिस ना किया हो। और तीसरा, मैं ये अर्ज़ करूंगा इनकी खिदमत में बड़े अदब से कि आप बड़ा जिक्र करते हैं कि नैब और अभी एक PTI के PTV के MD हैं, वो भी दोहरी शरीयत के हैं, सरकारी मुलाजम है, इन्होंने ही रखा। और इस तरह के बेशुमार और लोग हैं जो दोहरी शरीयत के हामिल हैं, इकरार भी करते हैं मगर बराजमा भी हैं अपनी कुर्सियों पर। तो मैं इनको ये ज़रूर कहूँगा कि नैब में उन लोगों को नोटिस नहीं होता। मंसूर अली खान
जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं सारे फरिश्ते नहीं हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इल्जाम है, हाथ रंगे होंगे मगर खामोश हैं, इसलिए उनको नोटिस नहीं करेगी नैब। हाँ, नोटिस उसको होगा जो किसी भी ओहदे पे कभी ना रहा हो मगर इनकी गलतियों को, इनकी कोताहियों को, इनकी लूट मार को निशानदेही करता जाए, इनकी गैर कानूनी हुकूमत को, गैर आईनी हुकूमत को, छीनी हुई हुकूमत को, चोरी की हुई हुकूमत को निशाना बनाए तो उसको नोटिस जरूर जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि 75% मंसूर अली खान इनके साथ वो लोग हैं जो 30-35 साल, ये बार बार जिक्र करते हैं 30-35 साल से ये आ रहे हैं, इसलिए करप्ट यही लोग हैं। अगर 100% इनकी बात को मान लिया जाए कि 30-35 साल से आने वाले सारे लोग करप्ट हैं तो उनमें से 75% तो इनके साथ बैठे हुए हैं, और अगर 75% इनके साथ बैठे हुए हैं तो फिर उनका एहतसाब कौन करेगा? 2 साल से तो आपने उनका एहतसाब नहीं किया। हाँ, एहतसाब किया है इन्होंने, सिर्फ उनका किया है जो इमरान खान की जादूगरी के सामने बोलते हैं, जो बोलते हैं कि आपने मईशत का बेड़ागर कर दिया, जो बोलते हैं कि आपने मईशत का बेड़ागर किया इसलिए पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो गया, जो बोलते हैं कि आपको बेहतर गवर्नेंस की तो को रख के लाने वाले लाए थे मगर आपने गवर्नेंस का बेड़ागर कर दिया। वो इनको बुरे लगते हैं जो कहते हैं कि बिजली तो वाफर थी मगर आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है, जो कहते हैं कि डॉलर की कीमत इतनी ऊपर क्यों चली गई, जो कहते हैं कि आप डॉलर और बताएं सोने की कीमत जो है आए रोज इतनी क्यों बढ़ रही है। और ये 2 चीजों में उस वक्त कीमत ज्यादा बढ़ती है जब अपने आपके पैसे की कदर कम हो जाए, जब आपके रुपए पर इतमाद ना रह जाए, फिर लोग इन 2 सॉलिड चीजों की तरफ आते हैं कि लोग इसकी खरीद, और जिस वजह से उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। मुझे ये बताएं कि आज किसी गरीब को 1 तोला सोना अपनी बच्ची को देने की हिम्मत रह गई है? ठीक है, रह गई है। मैं सर शैला रज़ा साहिबा के पास सर, मगर आप रुपए की रोज बरोज कीमत कम करते जा रहे हैं, इसलिए कि आप को जो IMF कहता है, जो आलमी अदारे कहते हैं, उनके सामने आप हर तस्लीम खाम हैं और अपोजिशन को उतारने के लिए बंदूक पकड़ी हुई है। शैला साहिबा, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप ऑपोजिशन के ऊपर, दोनों के ऊपर एक और तनकीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होती है वो ये है कि यही ऑपोजिशन जब अलग अलग थी, आप में से एक पार्टी हुकूमत में थी और एक ऑपोजिशन में थी, तब आप दोनों को एक दूसरे की सारी बुराइयां नजर आती थी। लेकिन अब चूंकि एक कॉमन दुश्मन इमरान खान है, आपके मुखालिफ सबसे बड़े इमरान खान हैं, तो एक दूसरे की तमाम गलतियां जो हैं वो माफ कर दी गई हैं। जिस तरह आज दोनों खानदानों के ऊपर तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक जमाना था, बल्कि ज्यादा दूर नहीं, आज से सिर्फ 3-4 साल पहले की ही बात कर लें, पैनामा का अगर केस ले लें तो आप लोग ही थे जो नवाज शरीफ साहब के पूरे खानदान के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि सिर्फ इमरान खान साहब की खातिर उनसे हाथ तक मिलाने के लिए तैयार हैं और तमाम बुराइयां आंखों से खत्म हो गई हैं, मिट गई हैं। अच्छा, मैं ये भी दूंगी और शानदाना साहिबा के सवाल का जवाब भी दूंगी। प्रोग्राम के शुरू में आपने ऑपोजिशन की कोई तनकीद नहीं दिखाई इन दोहरी शहरियतों वालों पे। ऑपोजिशन अगर करती है तो कर रही है, आपने खान साहब का बड़ा बोल और खान साहब की बातें दिखाई। तो मेरा कहना यही है कि वो उसी तरह है जिस तरह हर चीज पे उन्होंने यू टर्न लिया। उन्हें अभी भी मालूम है कि किस किस की दोहरी शहरियतें, उनसे भी लेना चाहते हैं ले लें। दूसरी बात, ये तानिया साहिबा की बात कर रही हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो अपने मुल्क में आ गए, बहुत अच्छी बात होगी दूसरे मुल्क की शहरियत विड्रॉ कर दे, मुल्क की खिदमत करें। अच्छा, तीसरी बात आपने कही थी कि किस किस के खानदान, तो अगर कोई किसी खानदान में एक आदमी सियासत कर रहा है तो दूसरे आदमी का राइट नहीं है। अगर वो आदमी ग्रास रूट से चला है, फरियाल साहिबा ग्रास रूट से चली, पहले बल्दियाती इलेक्शन लड़ी, नाजिम रही, फिर उसके बाद MNA लड़ी, रिजर्व सीट पे नहीं आती है। दूसरी बात जो है आपने कहा, तो मैंने सिंध में भी जहां हमारी हुकूमत रिशफलिंग होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती कि खुसरो बख्तियार पे इल्जाम था तो उनको एक वजारत से हटा के दूसरी वजारत दे दी। वजीर हवाबाजी पे जो है वो गैस और बिजली के गैस के बिल ज्यादा भेजने का इल्जाम था तो उनको हवाबाजी दे दी, उन्होंने PIA का भट्टा बिठा दिया, आप तीसरी वजारत दे देंगे। ऐसा हम नहीं करते। अब आपका सवाल पे मैं आ जाती हूँ। आपका सवाल जो है वो ये है, इसका जवाब एक ब्रेक के बाद दे दीजिए, इसका जवाब एक ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बड़ी जरूरी है, ब्रेक के बाद शैला साहिबा से जवाब देते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी इस्तीफों की और उसके ऊपर ही हम गुफ्तगू कर रहे थे। शानदाना साहबा, ये जो कुछ भी अब डेवलपमेंट हो, अच्छा चले शाला साहब आप पहले बात कीजिए, आप करें बात। आपने मुझसे सवाल किया था ना, जी आप उस सवाल से पहले कि अजहरा पेचो क्यों इस्तीफा दे दें, इसलिए कि असद उमर साहब ने तारीफ की, एनसीओसी ने तारीफ की, जफर मिर्जा ने तारीफ की, इसलिए कि कोरोना का रिकवरी रेट हमारे यहाँ 93.29 है, पंजाब में इतनी कम टेस्टिंग के बाद 88 है और केपी में और कम टेस्टिंग के बाद 81 है। अच्छा, अब हमारी और PMLN, देखिए जी, हमारे और उनके नजरियाती इख्तलाफात हैं, हमारे JUIF से भी नजरियाती इख्तलाफात हैं। हमें नून लीग से ये शिकवा है कि हमने ज़राअत जो थी उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया, हमने इसके बावजूद के कोलिशन सपोर्ट फंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, खजाना खाली था, हमने सिर्फ बहुत कम कर्जा लिया। हमने BIS भी शुरू किया, इन्होंने उसको बिगाड़ा, उसके कंपोनेंट्स जो कि वसीला सेहत, वसीला हक, वसीला रोजगार वगैरह थे वो खत्म करके मरियम के नाम से शुरू किए। हमें इनसे ये शिकायत है कि बहुत सारे NFC इन्होंने भी हमें कम दिया, हमें इनसे ये भी शिकायत है कि इन्होंने बड़े सालों के बाद पीपल्स पार्टी से नून लीग की कोई बुराई भी सुनने को मिली है बड़ी देर के बाद। पूरी बात कर रही हूँ, हमें इनसे ये भी शिकायत है कि इन्होंने भी NAP के जरिए हमारे साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने 62, 63 पे भी नहीं मानी। लेकिन हमारा जो इस वक्त जो है तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज का जो मिनिमम एजेंडा है जिसपे हम यूनाइट हैं, हम नजरियाती, हमारा कोई मर्जर नहीं हुआ है, हमारे एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, सबके खिलाफ, हम अकेले इलेक्शन में। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं मियां साहब के पास जाना है। आखिरी सवाल का जवाब दे दें। एक हमारा जो फ्लाइंस है वो बेरोजगारी, महंगाई पे है, इनकी GDP ग्रोथ जो है, जो कभी जंग में भी माइनस नहीं हुई, पिछले साल इन्होंने 1.9 की इजाफा कोरोना का लिहाज छोड़ के इन्होंने माइनस। एक सवाल का जवाब दे दें, मैं आगे चलूं, फिर मैं एक सवाल का जल्दी हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है नवाज शरीफ साहब करप्ट है? अदालतों के ऊपर है, अगर अदालत तो कह रही है करप्ट है, अदालत ने तो कहा है। उन्हें करप्शन पे सजा तो नहीं मिली ना, उनको तो आपने किसी और चीज पे सजा दे दी, केस तो ठीक है। और वरना तो मैं भी लोग बहुत, लेकिन 11.5 साल बाद भी उन पे करप्शन साबित नहीं होता। मैं शानदाना साहिबा के पास जाने से पहले जरा कुछ थोड़ी सी तनकीदी गुफ्तगू मियां जावेद लतीफ साहब से भी सुनना चाहूंगा पीपल्स पार्टी के बारे में। मियां साहब को पीपल्स पार्टी में कोई बुराई आजकल अब नजर आती है या सब अच्छा चल रहा है? कराची के अंदर पानी शानी आया, मुस्लिम नून मुतमईन है, ठीक है, कोई मसला नहीं? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मगर ये हकीकत है जो शैला बीबी ने बात की कि दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं। वो अलग बात है कि हमें एतराज़ है कि बलूचिस्तान में जिस तरह आदम एतमाद लाया गया, जिस तरह सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करने के लिए जो रोल जिसने अदा किया, उन चीज़ों से हमें शिकायत अपनी जगह मौजूद हैं और उसके समरात कौम को जो भुगतने पड़ रहे हैं वो भी सबके सामने है। किसी ने उसका एतराफ़ कर लिया, किसी ने नहीं किया, मगर मैं उस बहस में पड़े बगैर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि आप किस तरह इनसे जान छुड़ाते हैं मईशत को संभाला देने के लिए। आप बाजी में देखते आए हैं कि हर अपोजिशन ये कहा करती थी कि वक्त की हुकूमत को आप गिराएंगे नहीं, हमें लाएंगे नहीं तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये वही बात थी कि शेर आ गया, एक दिन आ ही गया। आज मईशत डूब रही है, बल्कि डुबो दी गई है। अगर इनसे छुटकारा हासिल अपोजिशन की जमातों ने मिलकर ना हासिल किया तो कौम का इन पर एक कर्ज रहेगा गैर जिम्मेदाराना इनके रोल का, अपोजिशन की तमाम जमातों का। अगर इन्होंने मिल बैठ के एक रोल इनसे छुटकारे का हासिल ना किया, क्योंकि अगर अब ना किया तो मईशत नहीं संभलेगी तो पाकिस्तान का दफा भी कमजोर होगा। पाकिस्तान का दफा खुदा न खास्ता कमजोर हो गया तो फिर आज जो हुआ है मकबूजा कश्मीर के साथ वो हमारे सामने है। तो फिर हमें अपनी फिक्र है, जो कहा जाता है इमरान खान की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर भी खतरे में है, तो कल को कोई और बात कर देगा, इससे पहले को कोई और बात करे। हमें इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, आपस में से जो मर्जी हो, लेकिन इनसे छुटकारा चाहिए। शानदाना साहिबा, इस छुटकारे से किस तरह बचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तीफों के ऊपर बात हो रही थी और आज जो गर्मा गर्मी हमने कौमी असम्बली के अंदर देखी, कुछ उसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। शानदारा साहबा, ये सारी सूरत हाल अगर हम देखें, एक जगह पे ये इस्तीफे आ रहे हैं, एक जगह पे अंदर कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन मजीद गर्म टेम्परामेंट के साथ खड़ी हुई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान है, अवाम महंगाई से परेशान है। हुकूमत के अंदर भी कोई परेशानी है या नहीं? शुक्रिया मंसूर साहब। पहला आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दूं, नहीं। देखें, वज़ीर आज़म साहब बार बार ये कहते हैं, वो एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम और उसी सियासत वज़ीर आज़म नहीं करके आए, ना हो किसी के बेटे ना या उनका कोई बेटा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर अवाम हमसे नाराज होती है या ये खुदा ना खास्ता नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाते हैं, तो वज़ीर आज़म को कोई इशू नहीं है ईगो का, वो चले जाएंगे, बात खत्म। जो वाहिद बात मुझे अगर अपोजिशन की पसंद है, और जो अल्लाह करे जरा थोड़ी इसको फॉर्मलाइज करें कि तनकीद बराए तनकीद की जगह ये लोग शैडो कैबिनेट्स बना लें, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि जब तक आपकी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी, मुल्क सही नहीं चलता। जावेद साहब ने सही बात फरमाई है, मैं भी फरमाती हमेशा कहती हूँ कि जी फरिश्ते या पैगंबर कोई नहीं इस मुल्क को जो इम्पोर्ट करके आएंगे, लेकिन काबिल लोगों की हमें जरूरत होती है। तो काइंडली अगर ये लोग इससे निकले कि जी ये वज़ीर आज़म ने बजट वाले आखिरी दिन पे ये बात कही थी कि अगर मैं ये 8-10 खानदानों को नैब से सिफारिश करके गिड़गिड़ा के कह दूं कि जी इनको हमारी हुकूमत कुछ मत कहे, इनको माफ कर दे, इन पे मत करे अकाउंटेबिलिटी केसेस, तो मेरी हुकूमत चलेगी जितने भी साल चलना चाहे। बात सारी ये है, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द इशू। यहाँ पे आती है बातें कि जी आप नैब को बंद कर दें, नैब बोरियत कर दें। हमने तो नहीं लगाई थी, जिसने लगाई थी, जिसने हुकूमत की, फिर दोबारा इस पर हुकूमतें कर देते इसको चेंज, बट एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करनी थी तो कर ली उसकी। अब अपने पल्ले पड़ी है, सारे केसेस इनके बनाए हुए हैं। हमारी वाहिद हुकूमत है जो हमारे अपने सिटिंग मिनिस्टर्स पे, सिटिंग पार्टी मेंबर्स पे हमने नैब के केसेस को रोका नहीं, उनको इनाम नहीं दे रहे हैं। ये नहीं अप्रिशिएट कर सकते, ना करें। ये पुराना पाकिस्तान है, इनकी सोच वहां से आगे जा ही नहीं सकती। जहां तक वॉर अगेंस्ट टेरर की बात हुई, जी मेरे सूबे में वो वॉर अगेंस्ट टेरर था, हमने उसको भुगता है। सिंध और पंजाब को तो पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा था वहां पे, और वो माजरत के साथ हमारी फौज फ्रंट लाइंस पे थी, हमारे लोग मेरे सूबे के, मेरे शहर के, मेरे गांव के। और ये मैं एक बात कहती चलूं, क्योंकि अब खानदानों की बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल कह रही है शैला साहब ऐसा ही कि जी वो सीटों पे जीत के आई है। नेचुरली सीट अपनी फैमिली को देंगे तो वो तो जीतेगी। बहुत शुक्रिया शानदार खान साहबा, टाइम खत्म हो गया। शैला रजा साहबा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।